Welcome to this session on breathworks. Before I start my session, today's session is going to be an interesting one because we are going to focus on stress management and relaxation. So relaxation and stress management, they are the two faces of the same coin. So how to take charge of your stress, how to make sure that you are more relaxed. We are going to talk about the science behind this. What do you mean when we say you are relaxed? What do you mean when we say we are stressed or relaxed? So we will see the science behind this. Second, we are going to touch upon an interesting concept. It has been DBT. You must have heard about DBT, dialectical behavior therapy. It has got four components. Whenever we are, emotionally charged, or we find that we are unable to take care of our emotions, then these are the four steps which have been suggested by DBT. They are very well known steps. The short form of this is TIPP. We will discuss in detail about what does stand for TIPP. Of course, breathing is going to be there, plays a very important role. So we will talk about all these things in today's session. Uh, Two, three things I want you to remember. First one is every first and third Saturday in the evening, 4 to 4:45, we are having online sessions which are focusing basically on lifestyle. So last Saturday, it was Dr. Ashwini Sethia, if you remember. Before that, we had two sessions by Dr. Chitra Sethia and our lifestyle medicine expert. And we are going to focus next Saturday on Ayurveda. Our expert, Dr. Ritu Sethi, will be there to share her thoughts about how to manage lifestyle on a day-to-day basis. They call it Dincharya. It's a very interesting concept. We'll see, and we'll be sharing the link also. So first and third Saturdays, we are focusing on the lifestyle management and how we can take charge of our life. And second, fourth, and fifth Saturdays in the morning, 11 to 11:45, we are focusing either on breathworks or on chanting, depending upon the requirement or depending upon the what we want to focus. So, so in case you have got any suggestions, you are most welcome to send across the suggestions in the chat box. So this is a format I wanted you to share. Second is we have got a functional YouTube channel and Instagram channel also. So we will be sharing the link. I will request Sateshji to share the link in the chat box. You can subscribe to these two. Instagram, we are about to start this week, and YouTube channel, we have already started. We are uploading all the online sessions which we have conducted till now. Plus, apart from that, we are uploading few newer videos also, which will help you in taking care of your health. That's the basic. So please do subscribe to the YouTube channel, share with your family, friends, and various groups, so that we are able to, spread this beneficial concept to as many people as possible. So any questions, any queries before I proceed as far as today's session is concerned? We have already talked about concept of chest breathing, what is diaphragmatic breathing. We have seen how diaphragmatic breathing can be done in various postures. Then we have discussed about the five good qualities which every breath should be having. Now, nasal, it has to be nasal breathing, noiseless, no jerks, no pauses, and then 1:1 ratio. Then last time, if I remember correctly, we have talked about how to lengthen the exhalation. Because by lengthening the exhalation, we can hack into our nervous system. So we are going to again touch upon the nervous system aspect today.
So any questions, any queries, you are most welcome. So that we can start with the question, or maybe we can do the session. Whenever there are any questions, please upload them on the chat. So at the end of the session, I will try to answer those queries if you have got any. So today we are going to see what stress is and what relaxation is, and how to make sure that we are able to tackle the stress which is happening because of the things which are internal things or external things. Both can lead to stress. So how to take charge of in those situations, how to make sure that you are able to control your stress. So there are two things. One is stress is some amount of stress is good also. It stimulates us to give our best possible performance. Not that stress is always bad. So that is, you can say that is as stimuli. They stimulate you to do better and better. Now, what is the science behind stress? See, basically there are two varieties of nervous systems in our body. First one is central nervous system, which consists of our brain and spinal cord and various nerves which are coming out from the spine. Second is autonomic nervous system, which has got two components. First one is parasympathetic nervous system. Second one is sympathetic. You need not remember all these terms. But parasympathetic nervous system is relaxing and digesting. It relaxes whenever the parasympathetic nervous system is predominant. Whenever sympathetic system is predominant, it adds on to the stress. The stimuli which are being thrown, the number of stimuli increases. So we have to make sure that parasympathetic nervous system always has got a slightly upper hand instead of the sympathetic nervous. So we have to have a good balance. What is stress? Stress means we are unable to elevate the level of the parasympathetic nervous system. So that the sympathetic nervous system remains at a higher level, much higher level as compared to the parasympathetic. That is stress. So let's say anything happens, I am sitting at comfort, okay? Suddenly a snake enters this room. What happens? Snake enters this room. What will happen? Either I run away from the room, or I will make sure I will take a stick or try to entangle the snake and throw the snake out of the room or out of the window. So this is fight and flight syndrome. That's why sympathetic nervous system is known as fight and flight syndrome. Either I will fight with the situation or I will flight. Flight means run away from it. So this is the activation of the sympathetic nervous system. And once the snake has been thrown out, then I find that, oh, I am more relaxed. Now I am more comfortable. That time my parasympathetic nervous system again start predominating all the actions inside the body. Parasympathetic nervous system predominating means parasympathetic is known as relax and digest. You are relaxed. So stress means you are unable to take care of the sympathetic nervous system. It is at a higher level. And you are unable to elevate the level of the parasympathetic, which relaxes. That is the basic difference. So whenever we say we are stressed, that means our parasympathetic nervous system is at a higher level. When we say we are relaxed, when we say we are stressed, our sympathetic nervous system is at a higher level. When we say we are relaxed, that time our parasympathetic nervous system is at a higher level. Now, very interesting thing is all the organs in the body, they have got these two fibers from these two nervous, sympathetic as well as parasympathetic. Simple. Let's say my heart. It has got a nerve from the sympathetic nervous system, a nerve from the parasympathetic. Parasympathetic will relax the heart, will bring the heart rate down, will bring the blood pressure down, and sympathetic nerve fibers will increase the heart rate, bring the blood pressure up.
Okay, so this happens with all the organs, with pancreas also, with the stomach also, with intestines also, with lungs also. All the organs in the body, they have got one branch from the parasympathetic, one branch from the sympathetic. Now let's see. I start eating. So eating, what happens? The sympathetic nervous system to the pancreas gets active. It releases the insulin. The blood level of the blood sugar level in the blood is increasing. So the message is given to the sympathetic nervous system to stimulate the pancreas. And as soon as the digestion is completed, I have taken care, my insulin level has taken care of the sympathetic nervous system, of the blood sugar. What will happen? The parasympathetic becomes active. It again stops or decreases the production of the insulin. So we need to have that balance of the sympathetic and the parasympathetic. If the sympathetic remains at a higher level, then it will keep secreting the insulin, it will keep secreting the insulin. Similarly, with the heart, if the sympathetic is at a higher level, my heart rate will be at a higher level. My blood pressure will remain at a higher level. If let's say let's assume the thing which is causing the stress goes away, or we are able to take care of that, what happens? Again, the parasympathetic predominant and the heart rate comes down, and blood pressure comes down. It's so simple. So we have to make sure that these two remain either at a same level, sympathetic and parasympathetic, or parasympathetic at a slightly higher. Always. If you know this trick of making sure your parasympathetic remains at a higher level, that means you know how to remain relaxed, how to take care of the stress. Stress is sympathetic nervous system at a higher level for a longer period. Now see, what does the lifestyle medicine? If you are सतीश जी इको हो रही है साउंड देखिएगा there is a message that my sound is getting echoed. Is there anything we can do? मैसेज आया हुआ है किसी के फोन से एक मिनट से बात सकते हो यार थोड़ा सा खोल दो अगर आपको इस ये बात की आवाज अच्छा बहुत कहिएगा मेरे को अगर अभी भी हो रही है अभी हम थोड़ा चेंज करें so आपको you have to make sure your sympathetic nervous system remains the lower level as that means you know how to relax, that means you know how to take care of the stress. Simple. This is a simple sign. I've simplified it too much so that you are able to understand what to mean when we say you have to be still echoing. Please let me know. Is there any still my voice is echoing? Then I will make sure something else is done better, but not best. Okay. Let me see if anything else can be done. Okay. Let's. Okay, so this is the when we say you need to take charge of your stress, that means you need to be able to elevate your parasympathetic nervous. Now, what are the various ways of elevating the parasympathetic nervous? Thank you. Thank you. So, very simple. The main nerve of the parasympathetic nervous system is vagus. Vagus nerve. If we know how to activate the vagus nerve, then we can take charge of our stress. Vagus nerve, it goes all the way from intestine to the brain, but it passes to the diaphragm. So if you know how to take care of your diaphragm, when you make sure your diaphragm moves, the vagus nerve gets activated. Okay, sir. हिंदी में भी कर लेंगे. Yes, sir. Definitely. देखिए सर ऐसा है स्ट्रेस मीन्स आपका सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है रिलैक्सेशन मीन्स योर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा तो हमने रिलैक्स रहने के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा काम करना है वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस वर्क्स एट ए हायर ठीक है अब सबसे
इंपॉर्टेंट नर्व तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में है, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम, वो है वेगस। वेगस नाउ पासिस थ्रू द डायफ्राम, so we know how to activate, how to move our diaphragm. That is the importance of diaphragmatic breathing. Why we are focusing so much on diaphragmatic breathing? If you know how to move your diaphragm, then you can activate the vagus nerve, which in turn activates the parasympathetic nerve. तो जो लोग डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग करते हैं, जिनको मैक्सिमम टाइम डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, दे विल रिमेन रिलैक्स। देखिए, स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। ये मत सोचना कि स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर टिल द टाइम यू आर ऑन दिस प्लैनेट। कभी आपके स्पाउस स्ट्रेस करेगा, कभी आपके बच्चे करेंगे, कभी आपके पेरेंट्स करेंगे, कभी आपके पड़ोसी करेंगे, कभी आपकी सोसाइटी करेगी, कभी आपके देश वाले करेंगे, ये चलता ही रहेगा। बट only thing you can work on yourself. You can make sure that you are able to face that stress. उसी को stress management. Don't try to, you know, take care of the stress which is happening all around. कुछ नहीं हो। या इंटरनली जो है, तो आपको अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपना लाइफ स्टाइल, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आप अफेक्ट नहीं होंगे इन सब चीज। ठीक है। स्ट्रेस आजकल हर चीज में, पानी ज्यादा बरस गया स्ट्रेस हो जाता है, सीना आ जाती है। पानी कम होता है, बरसता है, तो स्ट्रेस हो जाता है। हम हमेशा ही स्ट्रेस ही रहते हैं। ये हम लोगों की आदत बन गई है ना, सुबह से रात तक स्ट्रेस। तो मेक श्योर दैट यू डू फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फ्यू अदर थिंग्स, सो दैट यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ दैट स्ट्रेस। ठीक है। So first important thing which I have talked about is how to activate the parasympathetic nervous system. You just have to do diaphragmatic breathing. Tummy goes out, tummy goes in, tummy goes out. Often there comes, we have in various sessions we have emphasized on the diaphragmatic breathing. Very good. ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, diaphragmatic breathing करनी है। Secondly, I am not going too much into diaphragmatic breathing because we have already discussed this in detail in previous session. दूसरा एस्पेक्ट आपको जो ध्यान रखना है, यू हैव टू लेंथन योर एक्सलेशन। यू हैव टू लेंथन योर एक्सलेशन। हाउ टू लेंथन योर एक्सलेशन? First, this again we have discussed, but I am just repeating it. First is there is a type of breathing, type of technique which is known as pursed lip breathing. You breathe through your nose, you exhale through your mouth as if you are holding a straw. Basically, I am giving an obstruction at the level of the lips. So slow exhalation. This will lengthen your exhalation. अब देखिए, जो भी लोग एरोफोन्स यूज करते हैं, एरोफोन इंस्ट्रूमेंट्स कितने, जैसे बांसुरी हो गई, ट्रम्पेट हो गए, शंख हो गए, जो लोग ये बजाते हैं उनकी एक्सलेशन इज लेंथन, ऑटोमेटिक लेंथ। सो एज सून एज द एक्सलेशन इंक्रीजेस इन लेंथ, you are able to take charge of your parasympathetic nervous system, which activates the vagus nerve. That's an excellent thing. So that's why I'm emphasizing first one is diaphragmatic breathing. Second, you have to make sure that you are able to lengthen the exhalation. 1:1 तो रखना ही रखना है रेशियो। अगर 1:1 से 1:1.5 और 1:2 अगर आप करते हैं, to mean the length of exhalation is twice the length of inhalation. आपके जो सांस छोड़ने की लंबाई है वो दुगनी, कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी सांस लेने की लंबाई है, और कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। और ज्यादा कर सके, 1.5 गुना कर सके, 2 गुना कर सके, यू विल गेट मोर बेनिफिट। सो लेंथनिंग, बाय जस्ट लेंथनिंग द एक्सलेशन, यू कैन hack into your nerves, you can take care of your parasympathetic nerve. Hacking means क्या? Parasympathetic nervous system, you are able to activate the vagus. So this is an excellent way, lengthening of exhalation. Second, you can speak only in exhalation, you can never speak in inhalation. तो देखिए क्या है, जो लोग सिंगिंग करते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर आपको गुस्सा है तो गाना गाओ या गुनगुनाओ, बिकॉज व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू सिंग, you are lengthening your exhalation, you can speak only in exhalation. तो देखिए, 15-20 सेकंड तो आराम से हो जाता है। तो आपको कभी गुस्सा आने लगे तो उससे पहले आप क्या करें, 2-3 मिनट ये वाली ट्रेनिंग, इसको हम हमिंग ब्रेथ भी बोलते हैं,
इसको आप लेंथनिंग ऑफ एक्सलेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप भ्रामरी भी बोल सकते हैं। योगिक साइंस, योगिक वर्ल्ड में दिस इज नॉट भ्रामरी। भ्रामरी इज भ्रमर। भ्रमर का होता है हमिंग, हमिंग भी ये कर सकते हैं। तो देखिए भ्रामरी की ये इंपॉर्टेंट है, भ्रामरी मीन्स यू आर लेंथनिंग योर एक्सलेशन। तो आपको कभी गुस्सा आए, गुस्सा मत करिए, गुस्सा 2 मिनट के लिए रोक लीजिए। कैसे, क्या करना है, हमिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, कुछ भी। तो आप ये करेंगे तो क्या होगा, आपका गुस्सा कंट्रोल में आए। गुस्सा खराब नहीं है, बट कंट्रोल गुस्सा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए गुस्सा आपको ही जला दे, आप दिन भर रोते रहेंगे, अरे यार मैंने गुस्सा किया, अच्छा किया, गलत किया, यही सोचते रहने। गुस्सा उसी वक्त करो, खत्म हो जाए। अगर आप ये करोगे तो इससे ऐसे ही होगा। गुस्सा कई बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करना पड़ता, बट देन यू शुड बी एबल टू टेक चार्ज ऑफ योर गुस्सा। दैट इज मोर। ओके, तो लेंथनिंग, हाउ टू लेंथन, एक मैंने फर्स्ट स्लिप ब्रीदिंग बता दी, एक आपको ये बता। तीसरा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग वे टू टेक चार्ज ऑफ दिस। मे बी यू हैव हर्ड, मे बी यू हैव नॉट हर्ड। अगर आप इसको बोलते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ, देखिए ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना, मजा आ जाए बिल्कुल। एक्सीलेंट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बट रिमेंबर, इफ यू वांट टू डीपन योर ब्रेथ अवेयरनेस, व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक टुडे, the basis of this is diaphragmatic breathing. Until unless you are doing diaphragmatic breathing, you will not be able to deepen your breath awareness. आपको बेनिफिट कम मिलेंगे। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट, तो फाउंडेशन ऑफ ब्रेथ अवेयरनेस, ठीक है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तो हर जगह है लाइफ में, आप छोड़ नहीं सकते जब तक आप दुनिया में। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को दोस्त बना के रखो, ठीक है। नाउ अब देखिए, व्हाट इज दिस ब्रेथ अवेयरनेस। गुड, देखिए सिप्सी, देयर इज ए कार्टिलेज, ये दिख रहा है आपको, एक नाक, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बीच में एक, देयर इज ए डिवाइड, देयर इज ए कार्टिलेज व्हिच डिवाइड्स राइट नॉस्ट्रिल फ्रॉम द लेफ्ट। देख लीजिए नाक के बीच में, ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, देयर इज ए डिवाइड। दिस, द प्लेस वेयर दिस कार्टिलेज मीट्स द अपर लिप, मुस्टैच यहाँ पर, अपर लिप, not the tip of the nose. I am not talking about, remember, I am talking about this point. This is known as breath awareness point, where your upper lip meets the cartilage which divides the right and left. वहां पे आपने ध्यान ले। अच्छा, एक और बात है, जब हम बोलते हैं आपको अवेयरनेस ले रही है, अवेयरनेस में यू हैव टू टेक योर माइंड, यू डोंट हैव टू टेक योर आईज। और लोग ऐसे आईज को नीचे को करना नहीं, आईज हैव टू बी रिलैक्स, सामने देखनी है, आंख बंद में भी सामने है, रिलैक्स। और अपने माइंड को कहाँ ले जाना, ब्रेथ अवेयरनेस पॉइंट, ये ब्रेथ अवेयरनेस पॉइंट, उंगली रख लीजिए यहाँ, उंगली, ब्रेथ अवेयरनेस। तो आपने क्या करना, धीरे से इस पॉइंट पे ध्यान ले गए। स्टार्ट ब्रीदिंग, स्टार्ट ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। नाउ फोकस, you are already doing diaphragmatic breathing, now you don't have to focus on the diaphragmatic breathing, you have to focus here on this point. अब धीरे से अपना ध्यान कहाँ ले जाइए, नॉस्ट्रिल्स पे ले जाइए। फील द टच ऑफ एयर व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप सांस ले रहे हैं, हवा के टच को फील करें नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स में फील द टच ऑफ एयर इन द नॉस्ट्रिल व्हेन यू आर ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन, आपको फील होगा। जब आप टच कैसे फील करेंगे, थोड़ा सा ठंडा सा लगेगा, यू विल फील स्लाइटली कोल्डिश एयर टचिंग द नॉस्ट्रिल। फिर धीरे 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 आप बस यही feel the touch of air as long as you can when you inhale. Similarly, feel the touch of air when you breathe out. Breathe out करेंगे तो अंदर से हवा आएगी, ब्रीथ इन करेंगे तो बाहर से हवा के टच को फील करें दोनों टाइम। फिर जब आपको ये फील हो जाए अच्छा, फिर आपने क्या करना, फील द टच ऑफ एयर इनसाइड द नेजल पैसेज, होल ऑफ द नोज अप टू दिस। ठंडक लग रही है, देखिए मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। When I'm breathing out, that coolness is not there because air is coming from inside. It is at a higher temperature. Breathe in, feel the cool air inside the nasal passage. Breathe out, feel the warm air inside the nasal passage. ये अगर आपने सीख लिया ना,
तो अल्टीमेट है ये ब्रेथ वर्क्स में अल्टीमेट है, अगर आपने ये सीख लिया। देखिए सारे बहुत बहुत सारे ब्रेथ अवेयरनेस इसी पे बेस्ड है। ब्रेथ अवेयरनेस इज द की इफ यू वांट टू डीपन योर मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना सारी मेडिटेटिव टेक्निक जितनी है वर्ल्ड वाइड, दे फोकस ऑन द ब्रीदिंग, दे फोकस ऑन ब्रेथ। विपासना आपने नाम सुना होगा, देखिए ब्रेथ अवेयरनेस से ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। और ब्रेथ अवेयरनेस वैसे भी आपने, इसको हम बाद में बात करेंगे कभी, योग योग जब हम योग की तरफ डीपन जाएंगे, हाउ टू डीपन योर मेडिटेशन। यू नीड टू लर्न दिस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डीपन। जैसे आपने ये टच फील करना शुरू कर दिया, क्या होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी, विजुअल्स भी दिखाऊंगा। ब्रेन है ना हमारा, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। लोअर ब्रेन, देखिए देयर आर थ्री फ्लोर्स इन द ब्रेन, लोअर ब्रेन, मिडल ब्रेन एंड अपर ब्रेन। लोअर ब्रेन इज द हाइंड ब्रेन, इट्स नोन एज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में नॉर्मल व्हेन वी आर अनअवेयर ऑफ ब्रेथ, ठीक है, आप सुबह सांस ले रहे हैं, आपको किसी को पता लगा सांस ले रहे हो आप, किसी को भी नहीं पता। So there is a respiratory center in the lower brain which is automatically functioning. All through the life it keep function. ठीक है। अब क्या होता है, अब आप इमोशनली जैसे डिस्टर्ब होते हो, क्या होता है आपका मिड ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर वो इनएक्टिव रहता है। इट बिकम्स एक्टिव, नॉट ओनली इट बिकम्स एक्टिव, इट टेक्स केयर ऑफ द लोअर हाइंड ब्रेन। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलिए उसको रोक के इमोशंस विल डिक्टेट योर ब्रेथ। गुस्सा है तो वैसी ब्रीदिंग आएगी, खुशी है तो वैसी ब्रीदिंग आएगी, जॉयस है तो वैसी ब्रीदिंग आएगी, और आप हेट्रेड है तो वैसी ब्रीदिंग आएगी। जैसे इमोशंस है, ब्रीदिंग पैटर्न विल बी डिफरेंट फॉर ऑल द इमोशन। दैट्स द ब्यूटी। सो इसका एक और इंटरेस्टिंग क्या है, इफ यू कैन चेंज द ब्रीदिंग पैटर्न यू कैन टेक केयर ऑफ द ये एनीवे का। तो मिड ब्रेन बिकम्स एक्टिव व्हेन यू आर इमोशनली, दिस इज, मैं ब्रेन इसको मान के चल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत करना ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन नॉर्मल, हाइंड ब्रेन नॉर्मली ब्रीदिंग व्हेन यू आर अनअवेयर। मिड ब्रेन इज जब आप इमोशनली चार्ज हो जाए किसी भी वजह से, इमोशंस आपके अनकंट्रोल हो गए, तो आपका बीच का मिड ब्रेन काम करने लगता है। और जो हमारा जो सबसे ऊपर का पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दैट इज फ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स, दैट इज द मोस्ट रिफाइंड मोस्ट एडवांस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। It gets only activated when you are aware of your breath. That's the beauty. जैसे आपने ब्रेथ अवेयरनेस करी ना, वो वाला पार्ट एक्टिव होता है। कॉर्टिकल सेंटर बिकम एक्टिव इन द ब्रेन। कॉर्टेक्स इज द मोस्ट रिफाइंड, सबसे पढ़ा लिखा एरिया जो ब्रेन का है वो कॉर्टेक्स। So it becomes active. When it becomes active, what happens? It takes care of the rest. Emotional center also, it takes care of the hind brain center, and it becomes active. आपका पैरासिम्पैथिक एलिवेशन होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके आइडियाज अच्छे आएंगे, विजनरी बन जाओगे आप, अगर आप ब्रेथ अवेयरनेस करो। ये ब्रेथ अवेयरनेस में यू आर एक्टिवेटिंग द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वन। सेकंड, यू आर एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, टू। देखिए कितना फायदा हो गया इससे। ब्रेथ अवेयरनेस में क्या करना, कुछ नहीं करना। देखिए तो साइंस बता रहा हूं मैं आपको, साइंस, यू नीड नॉट लर्न दिस साइंस, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और करना क्या, टेक्निक क्या, ब्रेथ अवेयरनेस पॉइंट, टेक योर माइंड हियर। यहाँ पे फिर हवा के टच को फील करो, पहले एंट्रेंस पे, आह वाह कितना मजा आता है, और फिर आपको नेजल पैसेज में, आह वाह, एंड लेंथन द टच। जितना आप लेंथन कर सकते हो उतना टच करिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मजा आ जाएगा। आप, आपको मैं बता रहा हूँ, आई कैन वाउच फॉर दिस, आई कैन वाउच फॉर दिस। दिस इज द अल्टीमेट थिंग इन ब्रेथ वर्क। अगर आपने ये सीख लिया ना करना, बस हो गया, आप तो करें। और कितनी देर टच फील करना, 5 से 10 सेकंड टच फील करिए। इनहेलेशन, इनहेलेशन लंबी करनी है ना आपने समझी, एक्सहेलेशन लंबी करिए, इनहेलेशन लंबी करिए। सो जस्ट फील द टच ऑफ एयर व्हेन यू आर ब्रीथिंग इन इनसाइड द नेजल पैसेज, फील द टच ऑफ एयर व्हेन ब्रीथिंग आउट। और जैसे जैसे आपकी ब्रेथ अवेयरनेस डीपन होगी, आपको क्या चीज आएगी पता आपको, एक तो आप जॉयस फील करने लगोगे, यू फील जॉयस विदाउट एनी रीजन। नॉर्मली वी आर हैप्पी विद सम रीजन ना, मेरा बेटा फर्स्ट आ गया, मेरे को सैलरी मिल गई, मेरे को लॉटरी खुल गई, इसको ये हो गया, इसकी शादी हो गई, इसका बच्चा हो गया, कुछ ना कुछ जॉयस फीलिंग होती है ना। इसमें विदाउट एनी राइम एंड रीजन यू फील जॉयस। जॉयस मीन
देयर आर नो थॉट्स और मिनिमम थॉट्स क्रॉसिंग योर माइंड, दैट इज जॉय। जितने थॉट्स आपके कम होंगे उतना आप जॉय फील। तो आप जैसे लेंथन करोगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, your respiratory rate will come down, your number of thoughts crossing the mind will come down, your cortex will become activated, your parasympathetic nervous system will be activated। देखा कितने सारी चीजें होंगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ब्रेथ अवेयरनेस कीजिए। Clear? Any question? Because I want you to understand this concept very clearly. ये आपने सीख लिया ना, आप रिलैक्स हो जाओगे हर में। Any questions? Any queries? अमरजीत जी ठीक है, बेटर है, आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला? हवा के टच को फील करना, देते हुए छोड़ते हुए, देते हुए छोड़ते हुए, ध्यान यहाँ पर रहेगा। ब्रेथ अवेयरनेस पॉइंट, वी कॉल दिस ब्रेथ अवेयरनेस। योगा में इसको कुछ और बोलते हैं, योगा में इसको बोलते हैं एक्चुअली सुषुम्ना पॉइंट। हम उस पर जाएंगे नहीं, वो थोड़ा और एडवांस की चीज, उस पर किसी और दिन बात करें। अभी ब्रेथ अवेयरनेस कौन सा पॉइंट है? वेयर दिस कार्टिलेज मीट्स द अपर लिप। शुरू में आपको क्या, देखिए ऐसा है, जैसे आप यहाँ पे माइंड को ले जाएंगे ना, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। as soon as you bring your mind here and you start feeling the touch of air, what happens? स्पीड माइंड की स्लो, थॉट्स कम हो जाएंगे। तो माइंड परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे को यार, इतना मैं तो इतना तेज दौड़ता था, यहाँ से चंडीगढ़ भाग गया, यहाँ से लंदन भाग गया, यहाँ से अमेरिका भाग गया, यहाँ से बॉम्बे भाग गया, इतनी सारी चीज एक मिनट सेकंड में पहुंच जाता हूँ। ये तो मेरे को रोक के रख दिया इसने, यहाँ पे इस बंदे ने। तो क्या करता है माइंड? क्या करता है माइंड? विल टेक योर अवेयरनेस टू समवेयर एल्स। आपको लगेगा अच्छा आज दिन में क्या करना है, मॉर्निंग खेले जाना है, आज मूवी देखने जाना है, आज फ्रेंड से मिलने जाना है, लंच पे जाना है, इसके लिए आपका ध्यान। तो आपको क्या करना है, ये होगा, दिस इज नॉर्मल, यू हैव टू ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू दिस एंड फील द टच ऑफ द। फिर आपको माइंड ले जाएगा, ये माइंड का काम है, माइंड दिस माइंड, डोंट ट्राई टू फाइट विद द माइंड, यू मेक फ्रेंडशिप विद द माइंड, दैट्स द ब्यूटी। लड़ेंगे माइंड से तो जिंदगी गई। आपको फ्रेंड बनाना है, उसको दोस्त। दोस्त कैसे बनाना? माइंड और ब्रेथ दोस्त सबसे बड़े दोस्त। तो आप जैसे स्पीड कम करेंगे ब्रेथ की, रेस्पिरेटरी रेट कम करेंगे, तो 14 ब्रिंग इट 12, इफ यू ब्रिंग इट 10, माइंड खुश हो जाएगा, शांत होने लगेगा, क्वाइटिट्यूड हो जाएगा, कामनेस आ जाएगी, कॉर्टेक्स आपका एलिवेट हो जाएगा, कॉर्टेक्स सिम्पथेटिक नर्वस, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, देखो ना, मजा आ रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे को याद है, because once I was registered with a very well-known gynecologist, uh, South Delhi में। I used to conduct painless delivery, so I used to teach breath awareness, breathing and breath awareness to the mothers too. And you all know, females तो especially सबको पता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑन द, इससे ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर कोई हो ही नहीं सकता, रियली पेनफुल। बट अगर आप ब्रेथ अवेयरनेस के साथ करते हैं, इमोशंस कंट्रोल में, ब्रीदिंग, दे यूज्ड टू एंजॉय दिस जर्नी ऑफ डिलीवरी। आई हैव कंडक्टेड आई थिंक मोर देन 5000 पेनलेस डिलीवरी। सो इट्स यू जस्ट सी हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर इमोशन। आपको गुस्सा है तो लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़, गुस्सा शांत। ये गुस्सा शांत इसलिए नहीं होता कि आप भूल जाते हैं, गुस्सा शांत इसलिए होता है नर्वस सिस्टम, इमोशंस आपके कंट्रोल में। ये है, तो यू हैव टेक चार्ज। ठीक है, वो है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए अच्छा, दूसरी बात है, जैसे जैसे आपके ब्रेथ अवेयरनेस डीपन होगी, व्हाट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन? वन, योर माइंड विल कम जॉयस। आपको लगेगा कि व्हाई आई एम फीलिंग सो हैप्पी, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू फील हैप्पी, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई चीज नहीं, बट यू आर फीलिंग हैप्पी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेथ अवेयरनेस। सेकंड, अब जैसे कामनेस आपके आती है ना, क्वाइटिट्यूड आता है, वन पॉइंटेड माइंड में कोई भी चीज आप कर रहे हो। इसीलिए लोग पूछते हैं कितनी देर ब्रेथ अवेयरनेस करें? 2 minutes every 2 hours, that's good enough. They say chemical changes which happen because of the breath awareness, they last for 2 to 3 hours. तो कुछ नहीं, हर 2 मिनट में आंख बंद कर लीजिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं आंख बंद कर लीजिए,
फील द टच ऑफ एयर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में, 1 मिनट में आपको 10 सांसें लेनी है, 6 से 10 सांसें। तो आपने कितनी, 12 से 20 सांसें लेनी है। फील द टच ऑफ एयर ऑन ब्रीथिंग इन। सेकंड, आपको देखिए, अगर जैसे आपकी अवेयरनेस डीपन होगी, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता लगे क्या, you can feel the difference of air which is going in and going out. Temperature आपका, जब आप अंदर जाएंगे तो ठंडा आपको लगेगा, your nasal passage will become a bit cooler because the touch of the air which is cool coming from outside. And when you are breathing, आप अंदर से जब सांस ले रहे हैं, अंदर बॉडी टेम्परेचर की ब्रेथ है, गेन सम टेम्परेचर ना, warmth आ गई, so you can feel the touch of warmth. If you can differentiate this temperature difference, oh, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल डीप बन जाएगा। ठीक है ना। देखता हूँ एक कोई क्वेश्चन आया, लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी देखिए ब्रेथ अवेयरनेस का ही पार्ट है, तो सोचा नेक्स्ट टाइम किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको देखिए बताता हूँ एक सिंपल टेक्निक, वेरियस वेज। राइट नॉस्ट्रल प्रेडोमिनेंस, इस पे हम बात करेंगे मे बी नेक्स्ट सेशन, लेकिन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी आप टेक्निक क्या करनी है। देयर विल बी टाइम व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, देयर विल बी टाइम व्हेन यू फील डिप्रेस्ड। सबके साथ होता है, कुछ लोगों को ज्यादा लंबा चल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम चलता है। भी होता है, कई बार डिमोटिवेटेड सुबह, दिन में डिमोटिवेटेड, किसी दिन बड़े मोटिवेटेड होते हैं। तो डिसिप्लिन इज द की। क्या डिसिप्लिन करना है आपको, की देखिए, you close your left nostril. Left nostril is, in yogic sciences, left nostril is associated with slowness, right in analytical relaxation. Right nostril is activated, is related to activity. So अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, हल्का जेंटली क्लोज करिए। नाड़ी शोधन करने के उसमें जैसे करते हैं ना, इसमें लेफ्ट को क्लोज रखिए, राइट से ब्रीदिंग करिए, कोई भी नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, 5 मिनट करो। या कपालभाति, सिंगल नॉस्ट्रिल कपालभाति अगर आप करते हो तो कपालभाति फुल रेगुलेटर, 5 मिनट, आपका डिप्रेशन शांत हो, ये नहीं करा खत्म हो जाए, नहीं शांत। जो डे टू डे एक्टिविटी के बाद बता रहा हूँ, देखिए अगर आप क्रोनिकली है, यू हैव टू टेक द advice of psychologist, you take the advice of the psychiatrist, then you have to take the advice of Dr. Ashok Bhatt and do this thing. It will help. It will help you in taking care of your life. Of course, I am not saying सारी मेडिसिन आपकी खत्म हो जाएंगी, बट ये कि आप यू विल फील मच मोर एनर्जेटिक, डिप्रेशन आपका लेवल कम। ऐसे ही आप एंशियस है, स्ट्रेस है, तो क्या करना है, राइट बंद कर लीजिए। राइट इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, मूवमेंट। तो राइट को बंद करके देखिए, सिंगल नॉस्ट्रिल फॉर 2 to 5 minutes you do, you will feel much better. या ब्रीथ, 5 मिनट करिए सर, आप देखिए फर्क पड़ेगा, 100%, 100% फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो दिस इज वन, there are various ways also we will talk about when we discuss breath awareness in detail, इसके बाद और देखेंगे। तो तब तक हम ये आप देख लीजिए। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? फिर मैं आपको आज डीबीटी जो मैंने बात करी थी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थ्योरी। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, बहुत बहुत बार होता है ना, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार बहुत गुस्सा आता है, आउट ऑफ कंट्रोल। इससे पहले कि आप उल्टा सीधा कुछ बोल दें किसी को या किसी से लड़ लें, आप इनमें से चार, देयर आर 4 ways which you can implement, which you can take charge. Those 4 ways if you do, then you will find that you are able to take care of those emotional outbursts. वो भी इसी का एक सब यूनिट है, तो मैंने कहा उसको डीबीटी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। जैसे उन्होंने टिप, TIPP, टी कैपिटल, आई कैपिटल, पी कैपिटल, पी कैपिटल। फर्स्ट टी टेम्परेचर। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत सिंपल सा क्या है, आप ठंडे पानी से, बर्फ का पानी अगर मिल जाए तो बूंद हो रही,
अगर कुछ नहीं है तो आपके घर में जो है वो फ्रीजर में पैकेट होंगे, आइस, आइस को टावल में लपेट कर ऐसे लगा दीजिए। या आपके घर में फ्रोजन फ्रोजन पीस सबके पास रहते हैं, आजकल फ्रोजन पीस या कुछ भी चीज हो, आइसक्रीम, आइसक्रीम तो पिघल जाएगी तो ठीक नहीं है, फ्रोजन पीस रख रखा for 2 to 5 minutes. Immediately the heart rate comes down and your emotional outburst gets down. This is T, number one, temperature. You can have cold bath also. आप ठंडे शावर ले लीजिए, नहा लीजिए, that relaxes you, that relaxes. इसलिए कहते हैं ना, शावर ले लो ठंडे पानी में, रिलैक्सेशन। Okay. So this is T. Second is I. I, intense work, gymming या जॉगिंग, फास्ट जॉगिंग, इंटेंस वर्कआउट। तो क्या होगा इसमें, एक तो इट विल एलिवेट द लेवल ऑफ द डोपामिन, डोपामिन जो आपको फील गुड फैक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा एलिवेट कर देगा, तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, मच बेटर, योर इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो। सेकंड, इट टेक्स केयर ऑफ योर इमोशन आउटबर्स्ट, इंटेंस, इट हैज टू बी इंटेंस। इंटेंस पता किसको बोलते हैं? इंटेंस वर्कआउट होता है, यू शुड नॉट बी एबल टू, यू शुड नॉट बी एबल टू टॉक। अगर आप बोल पा रहे हो तो इंटेंस नहीं है, वो माइल्ड वर्कआउट। मॉडरेट में यू शुड नॉट बी एबल टू, देखिए डिफरेंस बिटवीन माइल्ड, मॉडरेट, इंटेंस। माइल्ड में यू आर एबल टू टॉक, जैसे हम वॉक करते हुए जाते हैं, गप्पे मारते हुए जाते हैं, उसको हम सोचते हैं वॉक कर रहे हैं, लेकिन वो माइल्ड होती है, माइल्ड की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहेगी। मॉडरेट, मॉडरेट में यू शुड नॉट बी एबल टू स्पीक फुल सेंटेंसेस, बट यू शुड बी एबल टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, आपका लंग्स पे ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, इशू। और इंटेंस में तो आप बोल ही नहीं पाओ, सांस आपके, आपको लगता है कि डिस्ट्रेस में सांस आपके अनकंट्रोल कर रही है। तो कार्डियक एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज जो होती है, आपके जिमिंग जो होती है, जॉगिंग होती है, इंटेंस जॉगिंग, क्लाइंबिंग होती है, सब वेरी इंटेंस। तो ये आप 3 चीजें करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। तो पहला था हमारा टेम्परेचर, दूसरा इंटेंस वर्क, तीसरा है, देखिए हमारा तो फेवरेट है, पेस ब्रीदिंग। यू हैव टू ऐड पेस टू द ब्रेथ। पेस ब्रीदिंग मींस स्लो डाउन योर ब्रेथ। स्लो डाउन मींस 5 सेकंड इनहेलेशन, 5 सेकंड, 6 सांस से ज्यादा सांस नहीं लेनी 1 मिनट, दैट इज पेस। 5 सेकंड इनहेलेशन, 5 सेकंड एक्सहेलेशन, एंड बिकम 6 ब्रेथ्स इन, 6 से कम अगर आप कर देना, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट कंट्रोल में रहेगा। 5 मिनट करना, कुछ नहीं करना, गुस्सा करना, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना उससे अच्छा ही है। अगर किसी ने आपकी कार पार्किंग में लगा दी है, कार में गुस्सा मत करिए, इंटेंस ये पेस ब्रीदिंग कर लीजिए, उसके बाद उससे रिक्वेस्ट करिए हटाने के लिए, हटा। अगर आप ऊपर से ही लड़ेंगे, उसको कहेंगे कार हटाओ, और 2 4 बातें ऐसी बोलोगे, वो कभी नहीं हटाएगा वो, और ही विल मेक श्योर दैट ही कीप्स हिज व्हीकल देयर फॉर एन नंबर ऑफ, एनीवे। तो ऐसा नहीं होता, आजकल लोग कोऑपरेटिव सी बात थी। तो TIP is space breathing. Okay. Last one is progressive muscle relaxation. P, TIPP, space breathing. तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो है, एक सिंपल सा आपको मैं मेरा हाथ, इसको आपने मसल्स को स्ट्रेस में लाना, पहले जैसे मैंने पहले मुट्ठी बनाई, मुट्ठी, मुट्ठी मुट्ठी मुट्ठी, तेज मुट्ठी, इसको फिर मैंने पूरे हाथ को टाइट कर दिया, आई टाइट एंड ऑल द मसल, स्ट्रेस। With inhalation, if you can do inhale and tighten, exhale, relax. This you can do with all the limbs. Then this you can do with whole the body. इसके बारे में भी अलग एक पूरा सेशन देंगे, because this is an excellent way of taking care of this progressive muscle relaxation. मैं सिंपल आपको बता दिया, देखिए ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथों इनहेल करके, एक्सहेल करके भी छोड़िए, इनहेल इनहेल इनहेल, टाइटन टाइटन, ऐसे पैरों के साथ करते हो, टाइटन वन लेग, देन टाइटन अदर लेग, देन टाइटन बोथ द लेग, देन टाइटन ऑल द 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, पूरा टाइटन कर, सारे मसल बॉडी टाइट। दिस इज प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। जो आप ये करेंगे तो आपको इमोशन
और बस खत्म हो जाएंगे आपके, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है तो बताइए, क्वेश्चन मैं तो वेरी कैन यस सर, जबरदस्त मैडम, लक्ष्मी जी बिल्कुल। आपको आई होप कि गुस्सा नहीं आता, अगर गुस्सा आता है तो बहुत एक्सीलेंटली, बस फील लगता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। बस यही चाहिए मुझे, मजा। जॉयस, मजा मीन्स जॉयस, जॉयस मीन्स आपके थॉट्स कम हो गए, वन पॉइंट इन माइंड हो गया। देखो जॉयस की यही डेफिनेशन है योगा में, नंबर ऑफ थॉट जैसे माइंड को क्रॉस करने वाले कम हुए, यू स्टार्ट फीलिंग क्वाइट, जैसे क्वाइटनेस आई। ये नहीं कह सकते कि और एंग्शियस मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स आर इंक्रीजिंग, स्ट्रेस मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स आर इंक्रीजिंग, रिलैक्सेशन मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स आर लेसिंग। कैसे करना है? सिर्फ डिफिकल्ट क्या है, छोटे छोटे थॉट्स कहना बहुत आसान है लोगों के लिए, यार थॉट्स कम कर दो, इसको देख लो, कैसे देख लो, देखना मुश्किल है। You decrease because they are friends. Number of thoughts and breathing is friend. You and it's a grosser. Breath is your grosser friend. You can take care of your breath. Breath को lengthen करिए, रेस्पिरेटरी रेट कम करिए, जैसे कम हो जाएगा। आप दो योगी लोग क्यों इतने एक सांस लेते हैं 1 मिनट में, ऐसे लोग हैं 1 मिनट में एक सांस ले लो, उनका क्या होगा? थॉटलेसनेस, दे आर बियॉन्ड द माइंड, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन ऑल। Okay. Any question before we close the session today? उसके बाद शाम को वो लोग भी सोते हैं थोड़ा No question. That means I have explained the things very well. Always great. Thank you very much. याद रखिए नेक्स्ट सैटरडे तो एक तो होगा लाइफ स्टाइल में 4 to 4:45 डॉक्टर रितु आएंगे। उनके लिए रहता है कि आप यूट्यूब चैनल हमारा करिए VIILM का, वेन्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन, ये चैनल है, नया खुला है, इसमें सारे अपलोड हो रहे हैं, आज का सेशन भी अपलोड हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सारे लिंक्स, उनको लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल।